નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, TV18 ન્યૂઝ ગુજરાતીમાં આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે। સાસરિયાના ત્રાસથી વધુ એક મોતનો આક્ષેપ। સુરતના કતારગામ વિસ્તારમાં પ્રણીતાએ ગળે ફાંસો ખાઈને આપઘાત કર્યો। ભાઈએ કહ્યું, મારી નાની બહેનને દહેજની માંગ કરીને ટોર્ચર કરી મારી નાખી। સુરતમાં સાસરિયાના ત્રાસના કારણે વધુ એક પ્રણીતાનું મોત થયા હોવાનો આક્ષેપ સામે આવ્યો છે। કતારગામમાં રહેતી પ્રણીતાએ ગળે ફાંસો ખાઈને આપઘાત કર્યાની ઘટના સામે આવતા પોલીસે તપાસ કરી, જ્યારે સાસરિયા પક્ષ દ્વારા સતત તેને માનસિક ત્રાસ ગુજારવામાં આવતો હોવાની ફરિયાદ પ્રણીતાના પરિવારજનોએ કરી। બહેનનો પતિ કોઈ કામકાજ ના કરતો, માત્ર રૂપિયા માંગતો। સુરતના કતારગામ વિસ્તારમાં આવેલી શિવદર્શન સોસાયટીમાં રહેતી પ્રણીતાએ ગળે ફાંસો ખાઈને આપઘાત કર્યો હોવાનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે। વહેલી સવારે આપઘાત કરી લેતા સાસરિયા પક્ષ દ્વારા પ્રણીતાના પરિવારને જાણ કરવામાં આવી હતી। કતારગામ પોલીસને જાણ થતાં ઘટના સ્થળ ઉપર પહોંચીને કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે। પ્રણીતાના મૃતદેહને હોસ્પિટલ ખાતે પોસ્ટમોર્ટમ કરવા માટે લઈ જવાયો છે। પ્રણીતા વારંવાર મારવામાં આવતી। પ્રણીતાના પરિવારજનોએ જણાવ્યું હતું કે અમારી પરિવારની દીકરીને સાસરિયા પક્ષે ખૂબ હેરાન કરી છે। સાસરિયા થોડા દિવસ અગાઉ તેને ખૂબ મારવામાં આવી હતી। તેને કારણે અમારી દીકરી ઘરની બહાર જઈને મંદિરના ઓટલે બેસી રહી હતી। ત્યારબાદ થોડા સમય પસાર થયા બાદ તે ફરીથી ઘરમાં આવીને કામે લાગી ગઈ હતી। આ બાબતની માહિતી અમને આજે આસપાસના લોકો દ્વારા જાણવા મળ્યું છે। મારી બહેન ઉપર સતત માનસિક ત્રાસ અલગ અલગ બાબતોને લઈને ગુજારવામાં આવતો। મૃતકના ભાઈ સંદીપ કુમાર ખટીકે કહ્યું કે મારી બહેન ઉપર આ લોકો સતત માનસિક ત્રાસ ગુજારતા હતા। આજે તેને 7 વર્ષની દીકરી છે। મારી બહેનને બીજો પુત્ર સંતાન થાય તેના માટે તેની નણંદ તરફથી પણ ખૂબ જ દબાણ કરવામાં આવતું હતું। પછી તેમના દ્વારા વારંવાર આર્થિક મદદ માટે રૂપિયાની માંગણી કરવામાં આવતી હતી। મારી બહેન ખૂબ જ ભોળી હતી। તેની એટલી હિંમત નથી કે પોતાનું જીવન ટૂંકાવી શકે। અમને શંકા છે કે મારી બહેનની હત્યા કરી નાખી છે। દર્શક મિત્રો, તમારી આસપાસ બની રહેલી અવનવી ઘટનાઓ વિશે જાણવા માટે અમારી ચેનલને લાઇક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરો, જેથી આપને નોટિફિકેશન્સ મળતી રહે। રિપોર્ટર રાહુલ મકવાણા અને ચેતન જબુંદેલા સાથે TV18 ન્યૂઝ ગુજરાતી, सूरत। मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं अमरपुरा राजस्थान का रहने वाला हूँ। सूरत में किस जगह पे रहते हो और क्या घटना हुई? सूरत में हम रहते नहीं हैं, हम अभी आए हैं। सूरत में मेरी बहन रहती थी, वो कतारगाम एरिया में उसका ससुराल था। वो इस दुनिया में नहीं रही तो उसके अंतिम विदाई के लिए आए, लेकिन यहाँ आके पता चला कि उसको 1 साल से टॉर्चर किया जा रहा था। बहुत परेशान थी वो। उसने घर पे भी बहुत बार बताया, लेकिन वहाँ घर वालों ने समझाया कि बेटी, शादी के बाद जो है, जो पति का घर है वही तेरा घर है। ये मेंटालिटी की वजह से आज मेरी बहन हमारे साथ नहीं है। लोगों ने उसको बहुत टॉर्चर किया। उसको पैसे के लिए परेशान करते थे, क्योंकि उसका पति कुछ करता नहीं था। मेरे पति टीचर थे, तो उसको हर बार पैसे के लिए मारता था। मेरे पिताजी बेचते रहे, उनकी सबसे बड़ी गलती। फिर उसके बाद उन लोगों को, मेरी एक भांजी भी है, वो 5.5 साल की है। उन लोगों को उससे एक बच्चा चाहिए, बोले कि हमारा वारिस नहीं है। तो उनकी एक उदयपुर वाली लड़की है, बड़ी लड़की, उनका संगीता नाम है। वो फ़ोन करके उसकी माँ को बराबर बोलती थी कि जब तक बच्ची नहीं हो इसको यहाँ मत लाओ, जब तक बच्चा नहीं हो इसको मत लाओ। वो नहीं जाती थी। बोला मेरे को यही रहना, तुम लोग मारो पीटो, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी। मेरे माँ बाप को क्यों परेशान करूँ, मैं नहीं जाऊँगी। मेरे को आप मारो, जो भी करो, मैं यही रहूँगी। मरने से 2 दिन पहले से उसके झगड़े चालू थे। उसको मारा, मैं अंदर देख के आया, टॉपसी में अंदर उसको चेहरे पे यहाँ पर सूज रहा है। बहुत मारा साहब। उसके घर पे भी सब बिखरा हुआ था। जो लोग गए वो बता रहे थे कि घर पे भी सामान खाने का बिखरा हुआ था। और वो ऐसा बोल रहे कि उसने उसकी बेटी को बाहर धक्का दिया और खुद अंदर बंद हो गया। ऐसा नहीं, कभी नहीं करती साहब। वो बहुत हिम्मत वाली थी। जो लड़की 7 साल तक रिश्ता निभाती है, वो ऐसे एक दिन में नहीं सुसाइड करती है साहब। उसको सुसाइड करवाया गया है, उसका मर्डर किया गया है। क्योंकि कोई भी सुसाइड ऐसे नहीं करता है साहब। किसी के मन में मरने का विचार तब तक नहीं आता है जब तक वो इस हद तक, यहाँ तक नहीं बढ़ जाता है साहब। और मेरी बहन तो ऐसा करती भी नहीं थी। उसको अभी 1 दिन पहले इस बात पे मारा उसकी सास ने कि उसने उसके पति का घूंघट नहीं निकाला था। साहब ये दकियानूसी बातें, इन चीज़ों की वजह से पता नहीं समाज कहाँ तक पहुँचेगा, लेकिन इन लोगों के दिमाग में अभी भी इस बात का कचरा भरा हुआ है। और इस छोटे छोटे कचरों की वजह से मैंने अपनी बहन खो दी है। मैं सबसे यही कहूँगा,
अगर आपको आपकी बेटी आपको आके बोलती है कि उसका ससुराल वाले पैसे मांग रहे हैं, तो उसको पहली बार में मना करके अपने घर पे बिठा लीजिए, आपकी बेटी आपके पास रहेगी। अगर वो आपको आके बोलती है कि वो बच्चे के लिए परेशान कर रहे हैं, उसको बच्चा चाहिए उनको, वो आपकी बेटी से नहीं बच्चे से प्यार करेंगे। अपनी बेटी को अपने पास रखिए, वो ज़िंदा रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने अपनी बहन खोई है, मैं नहीं चाहता कोई भी बाप अपनी बेटी को, कोई भाई अपनी बहन को, ऐसे लोगों, ऐसी छोटी सोच वाले लोगों के चक्कर में साहब। मेरी एक ही दरख्वास्त है अभी गुजरात सरकार से और गुजरात पुलिस से, मुझे इनके ऊपर पूरा भरोसा है कि ये हम लोगों को पूरा न्याय देंगे। मुझे पूरा भरोसा है इनके ऊपर, कोई न्याय दे ना दे, लेकिन हमारे देश का जो मीडिया है, हमारे देश की जो पुलिस है और हमारी जो सरकार है, वो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ऐसे लोग खुले नहीं घूमने चाहिए साहब, नहीं तो किसी दूसरे की बहन बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। हमें न्याय चाहिए। मेरे को अंदर एटोप्सी में लेके गए, मैंने बहन की बॉडी लेने से मना किया साहब। बहन तो चली गई, बॉडी ले जाके कहाँ लेके जाऊँगा। मुझे खाली इंसाफ चाहिए, मुझे खाली इंसाफ चाहिए कि जो मेरी बेटी के हत्यारे खुले घूम रहे हैं आराम से, एक भी बंदा यहाँ उसको देखने नहीं आया साहब। कल शाम से उसको लेके आए हुए, कोई नहीं आया। उसका ससुर थोड़ी देर खाली दिखावे के लिए रो के गया। ना उसका पति यहाँ आया, ना उसकी बेटी को यहाँ भेजा उन्होंने, ना उसकी सास यहाँ आई, ना उसकी ननंद जो थी वो यहाँ आई, कोई नहीं आया साहब। इतने ही अच्छे लोग थे, इतना ही सब कुछ था, तो यहाँ एक बार आते उसको देखते। भले ही उसके अंदर आत्मा नहीं थी पर शरीर था साहब, उसको भी कुछ लगती होगी। मैं उसका भाई हूँ, हम लोग बाहर से कम 12 घंटे भूखे प्यासे ट्रैवल करके आए, फिर भी यहीं पर रहे थे साहब। नहीं कहते, हमारा दिल था उसके अंदर साहब, इन लोगों का नहीं था साहब। बहुत बहुत गलत किया इन्होंने। पीएम रूप पे हो, क्या पुलिस से बात हुई है? बॉडी को लेके जा रहे हो अंतिम क्रिया के लिए, क्या कहेंगे? नहीं, अभी हम बॉडी नहीं लेके जाएंगे साहब, जब तक उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी ना। हमारा पूरा फैमिली यहाँ पर है, मेरे सारे रिश्तेदार, हम सब राजस्थान से आए हुए हैं। और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है साहब कि हमें खाली न्याय चाहिए, खाली न्याय चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। बहन मेरी चली गई है, वो तो आप कोई भी नहीं दे सकता मुझे, लेकिन उस बहन के लिए एक भाई खाली न्याय की गुहार कर रहा है, उसको खाली न्याय दे दीजिए साहब। वो कुछ नहीं चाहिए मुझे। उसके हत्यारे जो खुले घूम रहे हैं, बस उनको उनके किए की सज़ा मिल जाए और किसी दूसरे की बहन बेटी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। उन लोगों को थोड़ी सीख मिल जाए जो ऐसा करने वाले हैं। बस हम उनके लिए उम्र कैद, फांसी, जो सबसे ज़्यादा सज़ा हो सकती है उस सज़ा की मांग करता हूँ मैं उनके लिए साहब।